It would promote a cooperation between the two countries, how to use modern technique and technologies to counter such disasters in future jointly. And as I discussed with you, along with my colleagues, that we would be looking forward to having cooperation from Switzerland in terms of getting a warning system, advanced warning system, very advanced in technology, and other facets which really would secure Pakistan as much as possible from natural disasters out of climate change, where we have no contribution at all. We are not at fault at all. Secondly, I think we had again very good discussion on how to promote tourism between the two countries. We have beautiful mountains. One is in front of us, is pristine beauty. We certainly lack in infrastructure and other facets which will promote tourism in Pakistan in a big way. I look forward to working with you on this count as well. Also in the field of education and other areas. Thank you very much for your visit. Thank you, members of the delegation. You took time to visit Pakistan after a long while. And I'm very grateful that you mentioned about how important it is to maintain peace in this part of the world. And I was greatly encouraged by your statement that Switzerland would play friendly role and a role of as a catalyst to promote peaceful discussions. I would like to encourage you that please play a very proactive role, because Pakistan would like to live in peace in this region. Pakistan would like to promote prosperity, progress. Pakistan would like to invest in its population, alleviating poverty, unemployment, and promoting industry, agriculture, empowering our youth, our female population, schools, universities, medical centers, research centers. It's an agrarian economy, promote agriculture, IT. We have a youth which can be so profitable and so useful, not only for the well-being of Pakistan, but interacting globally. All these areas are very important for us. But the other side should also have honest introspection. It takes two to tango. So I think we cannot afford tension in this area. We cannot afford to waste our resources on fighting wars as they have not been of any help in the past. So I think we must absolutely, we are convinced that we should commit our resources in investing in the well-being of Pakistan. And of course, the leadership on the other side should also feel the same way. But to have lasting peace in this part of the world, we must understand clearly, without any kind of confusion, that for that we must resolve our issues, including Kashmir. Without that, we won't have peace in this part of the world. Thank you very much again. Thank you for your visit. And as a sehr schön mein wunderbar. Willkommen Sie. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। दोनों मुल्कों के दरमियान मफाहमती यादाश्त की ये तकरीब है और स्विस वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन NDMA ने यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। कुदरती आफात से निमटने के लिए इस मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। स्विस वज़ीर ख़ारजा से मुफीद और तामीरी बात हुई है, वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे और दीगर वफाकी वज़रा भी उनके हमरा थे। पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान कुदरती आफात से निपटने के लिए ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। दोस्त मुल्क स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा को उनकी जानिब से खुश आमदीद कहा गया है और स्विस वज़ीर ख़ारजा से मुफीद और तामीरी बातचीत हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया, दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमती यादाश्त की ये तकरीब है। कुदरती आफात से निपटने के लिए स्विस वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन NDMA ने यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। कुदरती आफात से निपटने के लिए ताउन की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब है, जिससे अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। दोस्त मुल्क स्विट्ज़रलैंड को वज़ीर ख़ारजा को खुशामदीद कहते हैं, ऐसा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया। ये भी कहा कि स्विस वज़ीर ख़ारजा से मुफीद और तामीरी बातचीत हुई। ये लाइव मनाज़िर आप अपने TV स्क्रीन्स पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, स्विस वज़ीर ख़ारजा हैं और वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेर रहमान भी इस मौके पर वहाँ पर मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब भी इस मौके पर वहाँ पर मौजूद हैं। तो कुदरती आफात से निपटने के लिए ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्विस वज़ीर ख़ारजा से मुफीद और तामीरी बातचीत हुई है और ये भी कहा कि हम वज़ीर ख़ारजा को खुशामदीद कहते हैं और ये भी कहा कि स्विस वज़ीर ख़ारजा से मुफीद और तामीरी बातचीत हुई है। जी हाँ, ये मनाजिर आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विस वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब से कुछ देर पहले तकरीब से खिताब किया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमती यादाश्त की ये तकरीब है। कुदरती आफात से निपटने के लिए स्विस वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन NDMA ने यादाश्त पर दस्तखत किए हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है कि स्विस वज़ीर ख़ारजा से मुफीद और तामीरी बात हुई है। इसके साथ साथ आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि दीगर वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मौजूद हैं और इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विस वज़ीर ख़ारजा और दीगर जो मेहमान हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे अब से कुछ देर पहले और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है कि स्विस वज़ीर ख़ारजा से मुफीद और तामीरी बात हुई है और बड़े ही खुशगवार अंदाज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बात कर रहे थे। कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत जाएगी या नहीं, वज़ीर आज़म ने फैसले के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कमेटी के सरबराह होंगे। राना सनाउल्लाह आज़म, नज़ीर तारड़, असद महमूद, मरीम औरंगज़ेब, अमीनुल हक शामिल हैं। कमेटी पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में शिरकत से मुताल्लिक फैसला करेगी। ज़राए के मुताबिक कमेटी भारत में वर्ल्ड कप से मुताल्लिक तमाम उमूर पर सिफारिशात मुरतब करेगी। हतमी मंजूरी के लिए सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएंगी। तो कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगी या नहीं, वज़ीर आज़म ने इस फैसले के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी है। हतमी मंजूरी के लिए सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएंगी। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत जाएगी या नहीं, इस हवाले से कमेटी कायम कर दी है। वज़ीर आज़म ने फैसले के लिए एक आला सतह की कमेटी कायम कर दी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कमेटी के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं और इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह आज़म, नज़ीर तारड़, असद महमूद, मरियम औरंगज़ेब, अमीनुल हक इस कमेटी में शामिल हैं। ये कमेटी कायम की गई है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, मुल्तान, साहिवाल, ओकाड़ा में भी बादल जमकर बरसे। सियालकोट, पाकपतन, अटक, टोबाटेक सिंह, बहावलपुर, बहावल नगर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। लाहौर में कलमा चौक अंडरपास और उसके एतराफ सड़कें और गलियां डूब गईं। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब में बारिशों का हालिया स्पेल 10 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। क्लिफ्टन और डिफेंस में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है कि कराची में आज और कल मजीद बारिश होगी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। जल थल एक हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, मुल्तान, साहिवाल और काड़ा में भी बादल जमकर बरसे हैं। लाहौर समेत मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे सड़कों गलियों में पानी ही पानी है। ऐसे में भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़ने से सैलाबी खतरा भी बढ़ने लगा है।
लाहौर में रात के आखिरी पहर मूसलाधार बारिश हुई, जिससे गलियों और सड़कों पर एक बार फिर पानी जमा हो गया। सबसे ज्यादा बारिश निश्चर टाउन में 78 मिलीमीटर और जोहर टाउन में 72 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वासस में जिली इंतजामिया नक्कासी आपके लिए मुतहर्रिक है। सूबाई वजीर हाउसिंग जफर अली नासिर और सूबाई वजीर बल्दियात आमिर मीर ने वाज़ा हुकाम को शहर को बारिश के पानी से जल्द अज जल्द क्लियर करने की हदायत दी हैं। लाहौर में गुज़श्ता बुध के रोज 291 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबो दिया था। दूसरी जानिब PDMA ने दरिया रावी और चिनाब के लिए 9 जुलाई से अलर्ट जारी कर रखा है। वसाइल की कमी के बावजूद वासा, जिली इंतजामिया और दीगर तरक्याती इदारे मुश्तरका कोशिशों से शहरियों को बारिश से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कोशा हैं। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। तो 10 जुलाई तक बारिशों के स्पेल की पेशगोई की गई है। कराची के भी मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी जारी है। क्लिफ्टन और डिफेंस में बारिश हो रही है। इसी हवाले से जानेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से आफ्ताब खान, जबकि लाहौर से अफजाल तालिब हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले शहर कायद का रुख कर लेते हैं। आफ्ताब, बताइएगा यहाँ पर बारिश की क्या सूरत हाल है, क्या पेशगोई की गई है और इस वक्त पानी की क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ इलाकों में? जी बिल्कुल, कराची में जो है कल के मुकाबले में अगर हम देखें तो मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है, जिसकी वजह ये कि कल शाम जो है जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, और उसके बाद जो है कराची में रात गए तक वक्फे वक्फे से ये सिलसिला जारी रहा और 15 मिलीमीटर बारिश जो है अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। ये सिलसिला आज सुबह फिर शुरू हो गया और अब इस वक्त भी पोर्ट कासिम और इसके अलावा मलीर के इलाकों में जो कि मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने अब से थोड़ी देर पहले जो एक एडवाइजरी जारी की उसके मुताबिक कल यानी इतवार तक जो है गरज चमक के साथ जो है बारिशों का सिलसिला बरकरार रह सकता है और उसके अलावा पीर के रोज़ फिर ये बारिश जो है हल्की बारिश और बूंदाबांदी जो है उस तक ही इम्कान महदूद रह जाएगा। बारिश की वजह से जिस तरह मैं बता रहा था कि मौसम काफ़ी बेहतर हो चुका है। ये यहाँ पे गुलशन टाउन में जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर हवाओं की रफ्तार भी काफ़ी बेहतर है, मतलब मामूल से तेज़ हवाएं चल रही है और इसके अलावा बादल जो है वो मतलब जुज़वी तौर पर आबार आलूद है। कुछ इलाकों में जो है धूप निकली हुई है, लेकिन वहाँ भी जो है चंद घंटों बाद जो है वो देखा जा रहा है कि फिर मौसम यकसर तब्दील हो जाता है। कल चूँकि कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो वो जोर जो है वो गर्मी का वो अब ख़त्म हो चुका है और मौसम जो है काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि खुशगवार हो चुका है कराची का। जी ठीक है आफ्ताब, अब हमारे साथ मौजूद रहेगा। लाहौर का रुख कर लेते हैं। अफजाल तालिब ने हमें ज्वाइन किया है। अफजाल, आप बताइएगा कि लाहौर में मौसम की क्या सूरत हाल देख रहे हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से क्या प्रेडिक्शन की गई है? हाँ जी बिल्कुल, चूँकि मानसून का बारिशों का सिलसिला बदस्तूर लाहौर में वक्त वक्त जारी है। आज रात गए से शुरू होने वाली बारिश जिन्हें लाहौर के जहाँ ज़्यादा बारिश हुई है वहाँ पे जलथल कर दिया, जहाँ कम बारिश है वहाँ भी लोगों की ज़िंदगी को मुतासर किया है। लेकिन चूँकि अगर हम बात करें तो लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो अब तक जो है वो 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। वो निश्चर टाउन का इलाका है। जोहर टाउन में भी 70 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है रिकॉर्ड, और 40 मिलीमीटर गुलशन हावी में और खास तौर पर लक्ष्मी चौक में भी जो है इस तक 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुके हैं। इस तरीके लाहौर के दीगर शहरों में भी हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला सुबह से लेकर अब तक सिलसिला जारी है। इस वजह से लाहौर का मौसम तो कदर खुशगवार हो गया है। चूँकि लाहौर आलूदगी के एतबार से भी अब ख़तरनाक ममालिक में शहरों में शुमार होता है, तो इसमें लाहौर में गिद्दो गुबार की वजह से दरख्त भी काफ़ी उनका हुस्न मान पड़ गया था। लेकिन आज के वक्त होने वाली बारिश से जो है वो दरख्त भी खिलखिलाते हैं, लोगों के चेहरे भी जो है खिले उठे हैं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में और हवस में काफ़ी कमी है। महकमा मौसमियात की बात करें तो महकमा मौसमियात ने पहले जो इतला दी थी वो 8 जुलाई तक मानसून की बारिशों के लिए पेशन गोई थी, लेकिन अब ये मानसून की बारिशों से थोड़ा सा स्पेल मजीद बढ़ गया। ये 10 जुलाई तक मजीद बारिशों का इम्कान है, जिसकी वजह से जो है मजीद बारिशों की। दूसरी तरफ से जो सबसे ज़्यादा खतरा जो अब आ गया बारिशों के साथ साथ वो PDM की तरफ से झेलम। अफजाल तालिब, यहाँ पर बताइएगा कि पीको रोड पे गड्ढा पड़ गया था, उसको कवर करने के लिए, उसको भरने के लिए क्या किया जा रहा है और वहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम कैसा है? हाँ, ये बिल्कुल ये आज सुबह के वक्त ये अफसोसनाक वाक़या हुआ कि अचानक चूँकि उस एरिया में रिश्तर टाउन के इलाके में इस वक्त हुआ 93 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। उसकी वजह से एक बड़ा शगाह पड़ गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम बड़ा मुअत्तल हो गया। तो फौरी तौर पर DCO लाहौर राफिया हैदर ने LDO दीगर महकमों को फौरी अहकाम जारी किए, जिसकी वजह से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर, LDA वासा और दीगर जो महकमे हैं वो उस वक्त जो है वहाँ काम कर रहे हैं। और असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन को यह हदायत जारी किया गया वो उसकी काम की निगरानी करें और जल्द अज जल्द इस शगाफ को पूरा किया है ताकि शहरियों में और ट्रैफिक में जो खलल है उसको बेहतर किया जा सके। जी।
ٹھیک ہے افضال طالب، آپ ہمیں لاہور کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے اور کراچی سے آفتاب خان ہمیں آگاہ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ تمام نمائندگان کا. براہ راست آپ کو لیے چلیں گے. فردوس عاشق امان پریس کانفرنس کر رہی ہیں. ضروری ہے اور اہم ہے کہ ہمارا استحکام پاکستان پارٹی کا جو رجسٹریشن پروسیس ہے وہ الحمدللہ اپنے آخری مراحل میں وہ تمام کنسلٹیشن، ڈسکشن اور انالیسس اور ٹیم ورک اور جو SOPs الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہیں ان کو ہم پورا کر کے آئندہ ہفتے باضابطہ طور پہ رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکانے جا رہے ہیں. جو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا ایک نئی جماعت کو رجسٹر کرنے کے لیے ایک طویل فہرست 3000 سے زائد ممبران ود ID کارڈز اور بے شمار ایک ضابطہ اخلاق کے ساتھ جڑا مینیفیسٹو پہ مبنی ایک ضابطہ ہے جس کو فلفل کرنے کے بغیر آپ رجسٹرڈ نہیں ہو سکتے. الحمدللہ وہ مرحلہ جو ہے وہ ہم مکمل کر چکے ہیں اور IPP جو ہے وہ اپنا ایسا مینیفیسٹو اگلے ہفتے آپ کے سامنے لے کے آ رہی ہے جس کے چیدہ نکات آج ہم ڈسکس کریں گے اور ان ڈیٹیل ہم اس رجسٹریشن پروسیس کے ساتھ چونکہ وہ مینیفیسٹو اٹیچ ہونا ہے تو وہ سبمٹ ہونے کے بعد ہم آپ کو پبلک کر دیں گے. چیدہ جو اس کے نکات ہیں اس کے اندر سب سے اہم چیلنج جو اس وقت ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے ہے وہ پاکستان کے اندر معاشی اور سیاسی عدم استحکام ہے. اس معاشی عدم استحکام کو کس طرح سے ہم ایک پاکستان کے لیے ترقی اور خوشحالی کے سفر کا ایک ایسا سلوگن اور ایک ایسا روڈ میپ پلان کر سکتے ہیں. اس مینیفیسٹو کے جو پلرز ہیں جو اس کا مختلف سٹرکچر کریٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ کوشش کی گئی کہ آپ کی 150 سے زائد جو سیاسی جماعتیں اس وقت الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں ہر ایک نے اپنے اس مینیفیسٹو کے ساتھ دل فریب نعرے لگائے ہوئے ہیں، منشور لگایا ہوا ہے. اپنے عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے الیکشن ایجنڈے کے ساتھ جڑا وہ سہانے خواب جو ہیں وہ انہوں نے اس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں. لیکن استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس سارے پروسیس سے ہٹ کے یقیناً وہ SOPs جو فالو کیے بغیر رجسٹر نہیں ہو سکتے لیکن ان خانے خوابوں کو دکھانے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی تعبیر کی ریسیپی بھی ساتھ لگائی ہے جو پاکستان کے مستقبل کی کنجی ہے. کیونکہ پاکستان کو اس وقت جو 65% ہماری یوتھ ہے جو ہمارا قیمتی اثاثہ ہے اس یوتھ کو ہم نے لائبلٹی نہیں بننے دینا اور یہی ہمارا محور اور مرکز ہے اس مینیفیسٹو کا کہ ہم نے اس یوتھ کو جو پاکستان کا مستقبل ہے جو پاکستان کا ایک ایسا قیمتی اثاثہ ہے جو ان گائیڈڈ میزائل ہیں جن کے اندر سابقہ ادوار میں جان بوجھ کے اس کو پلوٹ کیا گیا، ان کے ذہنوں کی منفی یا بیاری کی گئی، ان کے ذہنوں کو آلودہ کیا گیا اور ان کے اندر بارود تو بھر دیا گیا لیکن وہ بارود جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کی بجائے پاکستان کے ساتھ اونرشپ کی بجائے قومی ادارے اور قومی سلامتی کی جو بیسک ریسیپی تھی اس کے ساتھ ان کو جوڑنے کی بجائے وہ نفرت انگیز بارود جو ہے ان کے ذہنوں میں جو بھرا گیا. IPP جو ہے ان نوجوانوں کو پرو پاکستان، پرو ریاست
اپنی سوورینٹی، اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ایک محب وطن. پوچھیں گے کہ وہ کیسے؟ پوری سیاسی جماعتوں کا آپ جب ایجنڈا اٹھاتے ہیں یا ان کا مینیفیسٹو اٹھاتے ہیں تو آپ کو وہاں ہیلتھ، ایجوکیشن اور اس کے ساتھ جڑے مختلف طرح کے ایسے دل فریب نعرے نتھی ہوئے ان مینیفیسٹوز کے ساتھ نظر آئیں گے. لیکن جو ریئلسٹک اسٹریٹجی ہے، جتنی مرضی آپ کی کمپریہنسو، لیوکریٹو، اٹریکٹیو پالیسی بن جائے، جب تک اس پالیسی کے ساتھ آپ کی امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی نہیں ہوتی، اس پالیسی کا نچلی سطح پہ کوئی تاثر یا کوئی کسی قسم کا رزلٹ دیکھنے کو نہیں ملتا. اور یہی وجہ ہے کہ 76 سال سے پاکستان میں ہم نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کی سیاست کی، ہم نے ٹکراؤ اور تصادم کی سیاست کی. آئی پی پی ہم نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کی سیاست کی، ہم نے ٹکراؤ اور تصادم کی سیاست کی. آئی پی پی یہ چاہتی ہے، استحکام پاکستان پارٹی، کہ ہم متحدہ پاکستان کو آگے لے کے چلیں، اور وہ متحدہ پاکستان جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو آپ نے ٹارگٹ دینا ہے، اور وہ بارود سے بھرے ہمارے میزائل جو ہیں، کوئی اس میں سکیڈ میزائل ہے، کوئی ہمارا غوری میزائل ہے، کوئی ہمارا، وہ کس طرح سے اپنے ٹارگٹ پہ چلیں گے. وہ 3 پیرامیٹرز جو سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے، وہ ان نوجوانوں کے لیے کوالٹی ایجوکیشن. ایجوکیشن کی بات تو ہم کرتے ہیں، لیکن کوالٹی ایجوکیشن جو دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق ہو، اور جو ڈیجیٹل پاکستان، اس وقت دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹ کا روپ دھار چکی ہے، تو ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ جڑا جو اس نوجوان کا آئی ٹی سے ریلیٹڈ اورینٹیشن ہے، کیپیسٹی بلڈنگ ہے، اس کو وہ تمام ایکسپوجر دینا. اور اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اور ان کی ایکسپورٹس کو دیکھتے ہیں تو اس میں آئی ٹی جو ہے وہ ٹاپ پہ ہمیں نظر آتی ہے کہ انٹرنیشنلی ان کی جو ہیومن ریسورس انویسٹمنٹ ہے، ہم دیکھیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں پلوں پہ، اپنی سڑکوں پہ، اپنے نالوں پہ، اپنی بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ، بڑے بڑے کنکریٹ سٹرکچر پہ. آئی پی پی یہ چاہتی ہے کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ ہمارا وہ نوجوان ہے، اور اس ہیومن ریسورس پہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے، اور ہماری وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن کے ذریعے دنیا میں اپنے آپ کو امپاور کرے گی. چونکہ آپ کا اس وقت چیلنج جو سب سے بڑا ہے کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ جڑا، پھر آپ کا ہیلتھ ایک اگلا سبجیکٹ ہے. اور ہیلتھ جو ہے پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مختلف طرح کے طریقے اور رستے اپنائے گئے، لیکن آج بھی بیٹر ہیلتھ کیئر فیسلٹیز جو ہیں پاکستان میں نایاب ہیں. غریب اور امیر کے لیے جو ہیلتھ کیئر سٹرکچر کے اندر بسودہ نظام کے اندر گیپس ہیں، امیر کے لیے ہاسپٹل، غریب کے لیے اور طرح کی ڈسپینسریز، اس سوچ کی نفی کرتے ہوئے انشاءاللہ ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر بھی ہم وہ پیرٹی لانے جائیں گے کہ جو پاکستان کے عوام کا حق ہے، اور جو خاص طور پہ 70% رورل ایریا کے اندر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں آج بھی انفینٹ مارٹیلٹی اور مدرز مارٹیلٹی ریٹ کی وجہ سے، ہائی ہونے کی وجہ سے مر رہی ہیں. اور وہ چیلنجز جو دیہات کے اندر رہنے والے ہمارے بھائی، بزرگ، مائیں اور بہنیں فیس کر رہی ہیں، ان کو انشاءاللہ ہمارا مینیفیسٹو تحفظ دے گا.